Okay, next case is collision of two balls. तो जैसे हम जो भी होगा नंबर 4 होगा probably, fourth situation, collision of collision में अलग अलग टाइप के collision होते हैं, that we will see later on in the work energy chapter, next chapter. Elastic, inelastic and semi-elastic collision. Two bodies, yes sir, two bodies colliding together. अगर वो collide करके एक body बन जाती है, then that is called inelastic collision. Two bodies colliding, समझ गए? तो ऐसे किसी भी केस में suppose this is first ball और system M1 और ये कुछ दूसरा है M2. Initial velocities are U1 and U2. ये इनकी इनिशियल है बिफोर द कोलिजन. कोलिजन के लिए सबसे आई मीन बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर ये दोनों आपस में कोलाइड करें, व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन देयर वेलोसिटीज? ऑब्वियसली V1 greater than V2. U1 हैज टू बी ग्रेटर देन U2, अदरवाइज तो कभी कोलिजन होगा ही नहीं. एब्सोल्युटली. सो U1 की वेलोसिटी U1 ज्यादा है, वो उसके पास आ रहा है धीरे धीरे. दे टच ईच अदर and because of the contact, M1 ने M2 पे फोर्स लगाया, M2 ने M1 पे लगाया, but on this whole system net force is 0. After the collision M2 को कुछ फोर्स लग गया, M2 got an impulse in the direction of its motion. जिधर इसकी वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन में फोर्स, M2 की वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी और M1 पे अपोजिट डायरेक्शन में इंपल्स है, मोशन के अपोजिट, तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, which means after collision V2 will be greater than V1. Correct? Impulse is change in momentum. Positive impulse लग रहा है तो velocity बढ़ जाएगी, momentum बढ़ जाएगा. And likewise for the first one, it will decrease. During the collision, अगर surface में friction नहीं है और कोई external force नहीं है, then net force is 0. Where are you? क्या चाहते हो? इसे ऑफ करेंगे? ऑफ तो नहीं करो, थोड़ा उसको कुछ कर लेते हैं. Yes. So during the collision, net force is going to be 0. If net force is 0, that means total momentum will remain conserved. Initial before collision and after collision, the momentum has to be 0. Initial momentum is m1 u1 is equal to m plus m2 u2, क्योंकि दो चीजें हैं, दोनों का मोमेंटम ऐसा लगता है कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ इनिशियली कोलिजन के लिए, तो जो अपोजिट में उसकी वेलोसिटी नेगेटिव, उसका मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा. m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ये दोनों बॉडीज कैसी भी हो, दोनों स्टील, एक प्लास्टिक, एक रबड़, it will always be conserved. If they are some mud ball or some, बड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री में देखी है? दिखाना नोट्स. Very nice. ये रजिस्टर है, क्लास का भी है ये. इसी में तुम्हारा वो भी है, कंप्यूटर है. पूरा स्कूल और ट्यूशन, आईयूबीएससी भी इसी में है, मैथ्स भी इसी में है. वेरी गुड. सेंट्रोमास भी इसी में है. तो मिलो अलग से, तुम्हारी मेरी मीटिंग जरूरी है.
ऐसे नहीं चलता. Yes. So if these two bodies collide with each other and they become as one single mass, सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ते, घर से तो बच्चा आ गया, पढ़ रहा है बहुत. They are feeling that you are coming to learn. Second case, not example, second case अगर दोनों आपस में कोलाइड करके और सिंगल मास बना लेते हैं, m1 मूविंग विद u1, m2 मूविंग विद u2. जैसे आगे सपोज कोई बाइक है और पीछे से ट्रक, जस्ट एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल, कोलाइड, और वो साथ में दोनों एक साथ उसको लेके साथ में m1 plus m2. So if after collision it stick together, that's also collision. And during any type of collision, net force is going to be zero. Momentum will always be conserved. So the second scenario, it is called inelastic collision, जो हम अलग से पढ़ेंगे word. So what is the velocity of that combined mass that can also be calculated with the help of momentum conservation. This is called दूसरा practical example, a child running, और दौड़ते दौड़ते वो किसी स्केटबोर्ड के ऊपर चढ़ गया, which was initially at rest. So initially the boy of mass m1 moving with velocity v1 और एक skateboard रखा हुआ था which is of mass m2. So when he goes on it, कितनी velocity से अब वो skateboard आगे जाएगा, that also we can find with the help of same concept. Initial momentum is only m1 v1 क्योंकि तो रेस्ट में, and final momentum will be m1 plus m2 times v. So मतलब ये ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस होते हैं जिनमें दोनों मास कंबाइन करके एक सिंगल मास बना लेते हैं, and that momentum still will remain conserved. ठीक है, कोलिजन के टाइप और कोलिजन की और जो भी कहानी है वो हम अलग से पढ़ेंगे in the next chapter, work, energy and power. There are three types of collision: elastic, inelastic and semi-elastic. So फिलहाल के लिए अभी collision में इतना ही. Next, momentum conservation is applicable for all the type of collision, चाहे वो एक प्लास्टिक और एक स्टील की बॉल हो, क्योंकि yes. Sir, V2 greater than V1 कैसे पता चला? V2 greater than V1 कैसे पता पड़ा? क्योंकि पहले तो U1 greater था और आफ्टर द कोलिजन जो M2 को फोर्स लगा था या इम्पल्स, वो मोमेंटम के डायरेक्शन में, राइट? इनिशियली M1 वाज अप्रोचिंग, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. आफ्टर कोलिजन M2 is separating from M1. तो जो इम्पल्स M2 को मिला है वो पॉजिटिव इम्पल्स है, and that positive impulse will increase its velocity, its momentum. Okay sir. सर अगर V2 छोटा होएगा तो वो अलग ही नहीं हो पाएंगे. हाँ बेटा, फिर से बोलना. सर अगर V2 V1 से कम होएगा तो वो अलग ही नहीं हो पाएंगे ना. हाँ, ये भी बात सही है. V2 V1 से कम तो नहीं होगा. अभी V2 और हाँ, क्वाइट ऑब्वियसली बात है. अगर V2 छोटा होगा तो फिर वो अलग ही नहीं हो पाएंगे, फिर तो पीछे वाला ही धक्का देता रहेगा कंटिन्यूअसली. V2 is increased because of the momentum in the same direction, impulse provided in the same direction, और जो पहला पार्टिकल था उसमें मोशन के अपोजिट, so that's why it will be reduced. Before collision M1 is approaching M2, after collision M2 is separating from M1 because it has positive relative velocity with respect to M1, जिसको हम collision में use भी करते हैं for the calculation. Okay 90 sir. degree clockwise turn. अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कंफर्टेबल बैठो, बट देखो इधर ही. इट्स ओके, फोकस शुड बी हियर. हाँ, राइट. सो ये कुछ एग्जांपल थे जिसमें हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं बिकॉज द नेट फोर्स इज जीरो. बट नेट फोर्स जीरो में वैसे बहुत सारे अजम्पशन किए हैं हमने कि ग्राउंड में फ्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए, ग्राउंड से फ्रिक्शन होगा, दैट विल आल्सो बिकम एन एक्सटर्नल फोर्स, राइट.
So let's do few example on this और फिर हम बढ़ेंगे आगे. So this is striker कैरम वाला ही सही of mass 200 gram and it is moving with speed of 10 meter per second. लेकिन जब ये किसी शॉट को यूज करते हैं किसी फॉर एनी शॉट तो इट इज नॉट डायरेक्ट क्योंकि उसको जो पॉकेट है वो लेफ्ट साइड है. सो दिस इज क्वीन ऑफ 100 ग्राम. सो व्हेन इट स्ट्राइक्स अभी इसका जो कोलिजन होगा दैट इज नॉट हेड टू हेड. दिस इज नॉट इन द सेम लाइन. वो थोड़ा सा साइड में. अंडरस्टूड द सिचुएशन. इट्स नॉट इन द सेम लाइन. इसके ठीक सामने नहीं. इसको हम यहाँ पे हिट करने वाले. सो व्हेन द स्ट्राइकर स्ट्राइक्स स्ट्राइकर का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और क्वीन का तो डायरेक्शन चेंज हो गया बिकॉज इट वाज इनिशियली एट रेस्ट. सो इट इज हिटिंग इट ऑब्लिकली. दिस इज द कोलिजन. इट्स नॉट हेड ऑन कोलिजन. जो पिछली बार था दैट वाज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन. हेड टू हेड when their centers are in the same line, that is called head on collision. This is called oblique collision. After the collision, ये तो collision के time पे हो गया. This is the collision. किसी भी direction में हो according to action reaction pair, the net force will always be zero only. जितना इसने force लगाया है उतना ही इसके ऊपर लगाएगा और force हमेशा लगता है contact के perpendicular. When two bodies touch each other and they exert force, that force is perpendicular to their contact surface. जिसको हम normal reaction बोलते हैं. We will see in the complex situation how to draw. ये थोड़ा सा नीचे है. थक गया लग रहा सुबह से पढ़ते पढ़ते. जा नहीं रहा अंदर. अब बाउंस हो रहा है बाहर है. ईशान कितने बजे आए थे आप? 3. So this is an oblique collision, but any type of collision, net force is going to be zero always. After collision, the striker as well as this queen will be moving in different direction. So suppose it goes with velocity v1 here, and this goes with velocity v2. यस बोलो कुछ. लास्ट में क्या बोला? कैरम तो खेलते हो ना? हाँ, अगर सीधे स्ट्रेट हिट करेंगे तब तो वो सीधे जाएगा. इसको हम यहाँ साइड में हिट कर रहे हैं. तो हिट करने के बाद स्ट्राइकर ऊपर चला गया और ये इधर नीचे. राइट. सो अभी इसमें क्वेश्चन क्या है? इट हैज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरी जो क्वीन है दैट वाज इनिशियली एट रेस्ट. Now, if striker goes with a speed of 4 meter per second at an angle of 30 degree, calculate the velocity and direction of the queen. तो डायग्राम में ही समझ लो, कहानी लिखने की जरूरत नहीं है. आपको V2 बताना है किस डायरेक्शन में और कितनी स्पीड से that queen will be moving. So calculate V2, find the speed, magnitude as well as direction, find the velocity of just after the hit. Right. कैसे करेंगे मिस्टर विवेक? यस. या पढ़ा है आपने लास्ट क्लास में? ऐसे कुछ किया भी था हमने. ओके. यस, इट विल बी ऑब्लिक कोलिजन. सो हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे.
x component, y component, and separately we will write the momentum conservation equation, one for x direction and one for y direction. जब भी oblique collision होगा तो जैसे पीछे लिखा था m1v1 plus m2v2 is m1v1 m1u1 plus m2u2, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा because the direction is not same. We have to choose two perpendicular direction, x direction and y direction, and we'll have to write the equation of momentum conservation separately for x direction and separately for y direction. लास्ट क्लास में क्या था ऐसे एग्जांपल? शान, ज्यादा परेशान लग रहे हो? सेट हो गया? ओके, इधर आगे आ जाओ, इधर है काफी जगह, ठीक है? x डायरेक्शन में इनिशियली मोमेंटम है, सो लेट्स से दिस इज m1, ये m2, m1 and m2. Initially, what is the momentum in y direction? वंशिका, इनिशियली y डायरेक्शन में कितना मोमेंटम है? हाँ, in the y direction, what is the momentum initially? सिस्टम का. हाँ बेटा, राधिका कुछ कह रहे हो आप? सर v1 sin थीटा. इनिशियल, आई आस्क्ड इनिशियल. सिस्टम, मोमेंटम का मतलब सिस्टम, हम सिस्टम की बात करेंगे. सिस्टम में स्ट्राइकर भी है, सिस्टम में क्वीन भी है, तो दोनों का हमें, सिस्टम का मतलब पूरा दिस 0. इनिशियली देयर इज नो वाई डायरेक्शन वेलोसिटी, ना इसके पास है और ना इसके पास, बट एक्स डायरेक्शन में देयर इज अ मोमेंटम ऑफ द स्ट्राइकर, और बाद में दोनों का हमें एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करके देन वी ऐड. So velocity component जब भी oblique collision होगा, we have to do the momentum conservation separately for x and separately for y direction. इसको थीटा ले लेते हैं, v2 cos theta and v2 sin theta in right. Oblique collision के लिए we did two strategy. एक में तो p1 square plus p2 square plus 2p1 p2 किया था, but that will not be useful here because angle नहीं पता है हमें. Momentum conservation we will apply in x direction and y direction separately, or how many unknowns? How many unknowns? How many unknowns? वेरिएबल टू, कौन कौन से? थीटा और v2. और v2. सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी है. लेट्स सी. इनिशियली m1u, फाइनली m1 v1 cos 30 प्लस m2 v2 cos थीटा. वैसे तो सारे ग्राम में ही है, तो ग्राम में रहने दो. जब हम लिखेंगे y डायरेक्शन की इक्वेशन, y में इनिशियली मोमेंटम कितना है? 0. वेरी गुड. फाइनल कितना है मोमेंटम इन y डायरेक्शन? इक्वेशन. व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन मिस्टर विवेक? v sin 30 तो वेलोसिटी है, मैं मोमेंटम पूछ रहा हूँ. इनिशियल 0 है, फाइनल m1 into v1 sin 30. Heath, what is the momentum in y direction finally? Final m1 into v1 sin 30 और माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना, माइनस m2 into v2 sin थीटा. ओके, सो ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हमें थीटा और v2 नहीं पता है. सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि वो नीचे है. अपोजिट डायरेक्शन मींस नेगेटिव. अगर ऊपर है पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर की तरफ प्लस y, नीचे की तरफ माइनस y. सो v2 कैलकुलेट करना है और थीटा कैलकुलेट करना है. दीज आर द टू इक्वेशंस. सारे मास ग्राम में ही है तो ग्राम में रहने देते हैं, और
इसको अगर 60 में आए तो शायद थोड़ी हेल्प हो जाएगी, नहीं रहना तो कोई बात नहीं, तो लिख लिया। कैसे सॉल्व करेंगे, बट आपको ये मेथड बताना है। हाउ विल वी डू, डिवाइड करें, क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें? डिवाइड करने से क्या कटे, कुछ नहीं कटेगा। हाँ, यस, एनीवन सजेस्ट हाउ टू सॉल्व दीस टू इक्वेशन? छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई सब्स्टिट्यूट बड़ी कर दे प्रॉब्लम? किसको सब्स्टिट्यूट करें? सर, एक में से V2 दूसरे में डाल दो या साइन थीटा निकाल कर। साइन थीटा भी नहीं पता है ना, चलो ट्राई कर लेते हैं जो आप कह रहे हो। अगर हम V2 को रखेंगे थीटा के टर्म्स में, तो भी यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा बच जाएगा ना। ट्राई पहले सॉल्व करके देखो, किसी का आता है या आगे। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल है। अगर हमने V2 साइन थीटा, सपोज V2 की वैल्यू निकाली, सो चलो मैं पहले बता देता हूँ, टाइम वेस्ट करते हैं। The better method for solving this type, हम सेकेंड वाले इक्वेशन से V2 sin थीटा निकाल लें, ऊपर वाले इक्वेशन से V2 cos थीटा निकाल के दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर। V2 sin थीटा एक साइड, बाकी सब अदर साइड। V2 cos थीटा वन साइड, the rest everything on the other side, then square and add, तो sin square plus cos square हो जाता है 1 and we will get the value of V2 directly। उसको फिर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे टू सॉल्व। समझ गया ना क्या बोला अभी लास्ट? कर लेते हैं अब। M1 था 200 ग्राम है सारा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। U1 was 10, 200, V1 is 4 cos 30 root 3 by 2 plus 100 into V2 times cos theta, so 100 it's become 20 minus 4 root 3 is equal to V2 cos theta। कैलकुलेशन चेक कर लेना, सही होनी चाहिए। सेकंड इक्वेशन से M1 200, V1 is 4, sin 30 is half, that is equal to M2 which is 100 into V2 times sin theta। 100 100 2 1, so V2 sin theta is 4। ऊपर वाले इक्वेशन से V2 cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, बाकी सारा राइट साइड में, और नीचे वाली से V1 sin थीटा, आप दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों का स्क्वायर करेंगे, और किसी तरीके से चाहे डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, उससे आंसर नहीं आएगा, कोई इक्वेशन और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। V2 cos theta square plus V2 sin theta square, that will become 1 and it will be V2 square। बस इसको सॉल्व कर दिया है, इसमें वैल्यू डाल दी और इसमें वैल्यू डाल दी। हाँ, ओवर सैचुरेट हो गया, थोड़ा थोड़ा लोड डालो। लग रहा है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से यू आर टू टायर्ड। हाँ, नहीं वही कह रहा हूँ, इसमें समझने वाला नहीं आ रही, थर्ड फोर्थ की चीज थी, एक माइनस को दूसरी तरफ लेके जाओगे। हाँ बेटा, क्या लिखा है? हाँ क्या लिखा है? अच्छा ये क्या बनाया, बॉक्स बॉक्स? ये ना इक्वेशन, इक्वेशन 3 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 4 का स्क्वायर, और इनको हम ऐड कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम 1, और दूसरी तरफ इसका स्क्वायर करोगे तो 20 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सॉल्व दिस फॉर V2, और फिर V2 को यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छी से नहीं आएगी, थोड़ी गंदी आएगी, बट ओके। सॉल्व। सर, थोड़ी ज्यादा ही गंदी है। कोई बात नहीं यार, भावनाएं समझो।
राइट, सो बस भावनाएं समझो कैसे सॉल्व करना था। वैल्यू तो शायद थोड़ी गंदी आ रही होगी। ये कितना है? ये तो ओके, आगे तो कर ही लोगे सॉल्व। उसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम 1, फिर इसका रूट निकाल लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं और उनका मेथड। यस वंशिका बताइए। आंसर तो अभी शायद किसी ने निकाला किसी ने। 4√11.9। Sir, I didn't get what we did after equation 3 and 4. इक्वेशन 3 का स्क्वायर किया, दिस स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। इक्वेशन 4 का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया। इसके बाद सॉल्व करना है, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। कर लेते हैं। इक्वेशन 3 और 4 का स्क्वायर करके क्यों ऐड किया राधिका? बिकॉज एक में साइन थीटा और एक में कॉस थीटा है। एलिमिनेट करने के लिए एक ही आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। यू अंडरस्टूड ना? ये कहां से आया? दिस Yes, sir. स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। इसका स्क्वायर कितना हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16 is equal to v2 square. Then 454 minus 160 root 3 is 1.73 is equal to v2 square. इन लोगों ने बोला है 54 बोला है। अच्छा ठीक, 464 yes obviously 48 plus 16 minus 276, so v2 will be root of root 187.2। ऐसा कुछ चेक कर लो। एंड नहीं, मेरा 190 ओके सॉल्व इट। राधिका अंडरस्टूड? Yes, sir. अरे एक बार तो सॉल्व कर दो, स्क्वायर रूट निकालना भूल गया मैं। राइट, सो ईशान क्या बोल रहे थे आप? भूल गए रूट निकालना। यस सर। रूट
हाँ, रूट तो निकाल लोगे यार, स्क्वायर रूट भूल गया मैं। विवेक स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? तो विवेक, यस, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? 187.2 का स्क्वायर रूट निकालूं? हाँ, कौन सा मेथड होता है? तो निकाल के बताओ क्या है तुम्हारा आंसर। कहाँ किया तुमने? किया तो है नहीं। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? पहले हम पेयर बनाते हैं मिस्टर ईशान, ठीक है? पहले पेयर बनाते हैं, डेसिमल के आगे आगे वाले पेयर अलग होते हैं। तो ये पेयर में आ गया 20, 87 पेयर में आ गया बच्चा 1। द सेम नंबर जो यहाँ पर नीचे वही ऊपर लिखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, 1 into 1 is 1, 1 is gone। इसको फिर से ऐड कर देते हैं 2। देन वी यूज द नेक्स्ट होल सेट ऑफ पेयर। डिवीजन में अगला डिजिट केवल लेते हैं और स्क्वायर रूट निकालने के लिए होल पेयर। और जो नंबर यहाँ लिखना है, द सेम नंबर शुड बी हियर। 4 लिखोगे तो 96 हो जाएगा, इसलिए इट शुड बी 3। राइट, ओके। फिर 3 था, उसको 3 यहाँ रख के ऐड कर देंगे, दैट बिकम 26। अब ये डेसिमल, और डेसिमल के बाद जो पूरा पेयर था, दैट होल पेयर विल बी अगेन रिटन। सो 6 नहीं, 8 भी हो सकता है, नहीं 7। ईशान समझ आ रहा है कि नहीं? सर ये तो समझ आ गया, पेयर्स कैसे बनाया आपने, मतलब पीछे से बनाते हैं राइट साइड से? पेयर हमेशा पीछे से बनाते हैं, राइट साइड से बनाते हैं। डेसिमल के साइड अलग रखते हैं और डेसिमल के आगे वालों को अलग रखते हैं। बाकी इकलौता एक बच गया 1, तो 1 का पेयर नहीं बन पाएगा, उसको ऐसे रख लेंगे। और फिर ये 13.7 आ गया। कपड़ा तो किस क्लास में पढ़ाया जाता है? पढ़ाया नहीं जाता? कोई बोल रहा पढ़ाया नहीं जाता। ठीक, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस इज ऑन 5.23 विच इज इन होमवर्क। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एक्सरसाइज आपको एस एल अरोड़ा से करनी है 5.23 पेज। Exercise on page number 5.23 from SL Arora is in homework related to the same topic, conservation of linear momentum। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वन एग्जाम्पल जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप था वो मैंने करा दिया, बाकी वही बंदूक चलाने और गोली चलाने वाले हैं, वो आप कर लेंगे। लाइक a gun weighing 4 kg fires a bullet of 80 gram with velocity of 120। मैं एक क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। With what velocity does the gun recoil? M1 V1 is equal to M2 V2। वहां से velocity आ जाएगी गन की recoil। And it is asking what is the combined momentum of gun and bullet before and after firing। क्वेश्चन है उसी का सेकंड पार्ट। इट्स अ conceptual question। When the gun fires a bullet, what is the final momentum of bullet plus gun? 0। पहले भी 0 था, वो पहले तो गन और बुलेट दोनों रेस्ट में थे। इफ इनिशियल इज 0 देन फाइनल विल बी 0। थीटा निकाल लेंगे यार आगे, थर्ड क्वेश्चन में डाल के। याद ही मैंने रफ कर दिया। V2 तो आ गया 13.7। V2 साइन थीटा में साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कुछ अजीब सी साइन इनवर्स समथिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रॉकेट प्रोपल्शन, हम अलग से करेंगे रॉकेट प्रोपल्शन। एंड नेक्स्ट आते हैं इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इक्विलिब्रियम। So in physics, when we say a body is in equilibrium, that does not mean body is in a state of rest necessarily। Equilibrium का मतलब क्या है? उस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं है,
there is no force on that body. Other than that, there is no condition required. When net force is zero, the body is said to be in equilibrium. थोड़ा और specify करने के लिए we should write it translational equilibrium, क्योंकि rotational equilibrium भी हम पढ़ेंगे in the coming chapter. When net force is zero, acting on a body or system is zero, it is said to be in translational equilibrium. और अगर केवल equilibrium लिखा है तो भी दोनों equilibrium होते हैं, translational as well as rotational. So 4-0 होने के लिए velocity 0 होना जरूरी नहीं है. क्या जरूरी है? Acceleration 0 होना. So when a body is in equilibrium, then there are two possible cases. It might be at rest or it might be moving with constant velocity, because 4-0, so acceleration 0. Net 4-0 मतलब forces तो बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन उन सबका resultant मिलके 0 हो गया. They all balance each other. Net force is 0, so acceleration is 0. अब acceleration 0 का मतलब either at rest or it might be moving with constant velocity. बॉडी मोशन करते करते भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, बट एक ही कंडीशन है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो. फॉर अ बॉडी टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स हैज टू बी 0. सो बिफोर वी गो टू द क्वेश्चंस ऑफ इक्विलिब्रियम, पहले हम थोड़ी फोर्सेस के बारे में एनालिसिस करेंगे. व्हाट आर द बेसिक टाइप ऑफ फोर्सेस दैट वी विल अप्लाई इन द इक्वेशन. Okay, good. So when a body is in equilibrium का मतलब हो गया net force 0, net force 0 का मतलब acceleration 0, acceleration 0 का मतलब या तो rest में है या फिर constant velocity. So पहले heading डालना next common forces. हम अभी कुछ specific common forces जो most of the time हमें diagram में show करने होंगे, उनकी analysis कर लेते हैं. In which direction they act, what are their values, और वो कैसे system को affect कर सकते हैं, either at rest or moves with constant velocity. Common forces में पहला common force है gravity. Some of the common forces that we will apply in first, weight. हम थोड़ा FBD के टर्म्स में पढ़ेंगे, बाकी तो पढ़ ही चुके हैं. वेट क्या होता है, mg किधर लगता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेट. वेट किस डायरेक्शन में लगता है ईशान? व्हाट इज वेट, क्या है वेट? फोर्स ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी. अर्थ अब जितने फोर्स से हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जो भी, दैट इज कॉल्ड वेट. फॉर्मूला होता है वेट का mg, राइट. एंड डायरेक्शन होती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्योंकि अर्थ नीचे है, सो नीचे. इसके लिए भी अर्थ नीचे ही है, हमने भले प्लेन थोड़ा टेढ़ा कर दिया है. सो इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. फॉर द वेट का फॉर्मूला mg एंड इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. बट वर्टिकली डाउनवर्ड्स वर्ड केवल तभी तक सही रहेगा जब तक वो
छोटे किसी साइज का बॉक्स है या ब्लॉक है, सपोज इट इज वेरी बिग इन साइज सो दैट अर्थ के रिस्पेक्ट में वो कंपेरेबल साइज का हो गया. फॉर दिस ब्लॉक व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेट? क्वेश्चन पहला, ये तो एक छोटा सा कुछ टेबल ऐसे बॉक्स रख दिया नीचे, इंक्लाइन प्लेन पे बॉक्स रखा है नीचे. थर्ड, अर्थ अगर इतनी बड़ी और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ, दिस इज अर्थ. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन पूछ रहा हूँ मैं, वैल्यू नहीं पूछ रहा. यस, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा आयुष? ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. सो it will be toward the center of earth, not vertically downwards. So gravity acts always toward the center of earth. छोटे मोटे साइज के लिए वो सेंटर ऑफ अर्थ जो डायरेक्शन है वही वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन बन जाती है. वेट इज अ कांस्टेंट फोर्स. केवल ग्रेविटी चेंज होगी, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, देन वेट विल आल्सो चेंज. इफेक्टिव वेट या अपेरेंट वेट जो लिफ्ट में जाने पे चेंज हो जाता है या हम कहीं झूला झूल रहे हैं तो चेंज हो जाता है, दैट इज नॉट द एक्चुअल वेट, वो कुछ और है. एक सेकंड.
Yes. So weight is a force that is constant, but direction होती है towards the अब. Yes. Another question that I was going to ask कि हम अपना जो weight feel करते हैं, weight feel हो रहा है ना अभी अपना कुछ float तो नहीं कर रहे, वो किसकी वजह से feel करते हैं? हम जी की वजह से. बेटा Sir, मेरा क्वेश्चन समझ normal. गए? हाँ, कोई बात नहीं, अभी किसी ने आंसर कर दिया वैसे ऑनलाइन, आप लोगों को नहीं पता पड़ा. अगर हम सपोज हवा में जंप करते हैं, हाँ, अगर हम जंप करते हैं हवा में, सपोज कहीं से कूदे ऊपर से, while you are in air, हवा में है आप, उस टाइम पे अपना वेट फील होता है? वेट mg लग रहा है उस टाइम पे, नहीं लग रहा है? हाँ, सीरियस नहीं है? अरे कहीं से भी थोड़ा बहुत कूदोगे, दीवार से, नहीं कह रहे ऊपर जाके बिल्डिंग में कूदना है. mg is still there but you don't feel your weight. होता है ना ऐसा, जब जंप करते हैं हवा में, वेट तो फील नहीं होता, mg तो फिर भी लग रहा है, तो हम अपना वेट mg की वजह से फील नहीं करते. किसकी वजह से करते हैं? अबे ग्रेविटी तो अभी भी है, ग्रेविटी यहाँ भी है, लेकिन ग्रेविटी से नहीं फील हो रहा है. दी वेट इज एक्सपीरियंस जब उस ग्रेविटी को कुछ अपोज करता है, एंड दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. जब हम किसी सरफेस पे खड़े हैं, सरफेस पे खड़े हैं या किसी भी, देन देयर विल बी अ अपोजिंग फोर्स. अपोजिंग क्यों लग रहा है, मतलब किसका अपोज? ग्रेविटी का अपोज नहीं है ये दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में हो और एक दूसरे को प्रेस करते हैं, टू सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड दे प्रेस ईच अदर, तो उस प्रेस को जो अपोज करता है, दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. प्लीज लिख लेना इसको, डेफिनेशन नॉर्मल रिएक्शन की. नॉट अ डेफिनेशन, थोड़े एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे. यस यस, आई विल रिपीट. होल्ड. देखो वेट तो पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. वेट इज सम फोर्स अप्लाइड बाय, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा. नॉर्मल रिएक्शन के बारे में लिखना है. दी contact force, the contact force acting perpendicular to the surface when two bodies slash surfaces press each other. दो बॉडी या सरफेस एक दूसरे को प्रेस करते हैं, then the force acting slash surfaces press each other. अब वो perpendicular to the contact surface, perpendicular to contact surfaces when two bodies slash surface press each other. Press दबाते हैं जब, when two surfaces press each other, right? जैसे यहाँ पे ये एक surface, नीचे कुछ है, टेबल जो भी है, फ्लोर, that is being pressed by the gravity, weight की वजह से वो नीचे वाले surface को दबा रहा है, so that surface applies an opposite force to counterbalance it. और वो किसने किया? वो surface ने किया. This is perpendicular to the contact surface. इतना ही नीचे भी रहेगा, वो हम एक्शन रिएक्शन में कर चुके हैं डिस्कस. ये सरफेस ने लगाया, इतना ही फोर्स नीचे सरफेस पे भी लगेगा. ऑन द सेकंड सिचुएशन, इन द सेकंड सिचुएशन, ये जो फोर्स है वो इस कांटेक्ट पे लग रहा होगा, व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट. तुम विवेक इधर देखना, ठीक है? हाथ उठाओ पहले इधर और टर्न योर फेस, नहीं तो आप घर जा सकते हैं. यू आर फ्री टू गो, कोई सजा नहीं मिली आपको मेरी तरफ से. नो इन्वॉल्वमेंट, नो रिक्वायरमेंट, गो. कहानी सुनाने के पैसे नहीं मिल यहाँ लेता हूँ. यू कैन गो आउटसाइड. 3 बार देखा हूँ तो घर देख रहे हो दीवार में. यस, दिस सरफेस जो नॉर्मल इस इंक्लाइन प्लेन का सरफेस है, वेट तो नीचे की तरफ लग रहा है, बट इस सरफेस के कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर. दिस इज एंड. अब नेक्स्ट टाइम आना अपने पैरेंट को लेके. कब आओगे? कल नहीं, फ्राइडे. आई वांट टू मीट.
नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। वो mg को अपोज नहीं कर रहा है, वो इस सरफेस की वजह से है। सरफेस को प्रेस किया उसने और सरफेस के परपेंडिकुलर द फोर्स एक्टिंग इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर भी जो सरफेस को प्रेस कर रहा है उसके अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। सो इट इज नॉट जस्ट द ग्रेविटी, कोई भी फोर्स। अभी हम इफ यू आर जैसे वॉल के सारे खड़े प्रेसिंग द सरफेस, देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन। Any two surfaces when they have tendency to press each other, they apply normal, always perpendicular to the contact surface। जितने भी कांटेक्ट होंगे हर एक कांटेक्ट पॉइंट पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। बेटा ये अर्थ का सरफेस है, अभी नापना है तो नाप लो आके। 90 डिग्री ये अर्थ का सरफेस है, ग्रीन कलर का बना है, ये अर्थ ही है, कुछ और कोई बोला नहीं है। दिस इज दी अर्थ ओनली। बोर्ड में पूरी अर्थ नहीं आ पाएगी, इसलिए उसका एक डायग्राम है थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का। यस, समझ गए। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स, जब भी दो सरफेस प्रेस किया वॉल को, देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए जब नॉर्मल रिएक्शन मिलता है तो अच्छा लगता है, जैसे पीछे से सपोर्ट। व्हाई? बिकॉज सम ऑफ योर वेट इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। तो एक फ्लोर से नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है, एक पीछे वॉल से मिल रही है। जितने भी कॉन्टैक्ट सरफेसेस, ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। नॉर्मल रिएक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, और वो उस सरफेस की हार्डनेस पे डिपेंड करता है कि वो कब कब तक एडजस्ट कर सकता है। एक लिमिट से ज्यादा जैसे ही होगा या तो सरफेस ब्रेक हो जाएगा। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब इसका अपना, जैसे वेट तो हमेशा mg होना है, चाहे उसको टेबल पे रखो, चाहे अर्थ पे रखो, चाहे हवा में रखो, कहीं भी रखो, इट विल ऑलवेज बी ऑलवेज mg ओनली। बट नॉर्मल रिएक्शन विल बी चेंजिंग एज पर द सिचुएशन। पहले सिचुएशन में mg लग रहा है नीचे, उसको बैलेंस करने के लिए n ऊपर। सो इन दिस फर्स्ट सिनेरियो n इज इक्वल टू mg। mg मैग्नीट्यूड वाइज माइनस तो डायरेक्शन में शो ही कर लिया, अब जरूरत नहीं है तो डायरेक्शन तो शो कर दी, वो ऊपर है ये नीचे, अब माइनस की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू राइटिंग इन वेक्टर फॉर्म देन यू विल राइट n j cap और mg minus j cap। इफ यू राइट इन द वेक्टर फॉर्म देन ओनली n is equal to mg। अब ये सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है? धरती पे, अर्थ पे या किसी भी सरफेस पे कोई 5 kg का वो भी है एग्जिस्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम में, कोई 500 kg का वो भी रेस्ट पे, कोई 100 kg का वो भी रेस्ट पे। बिकॉज द सरफेस इज सेम बट स्टिल द नॉर्मल रिएक्शन इज एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू द फोर्स अप्लाइड। राइट। सेकेंड सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन किस फोर्स को बैलेंस कर रहा है? इट इज नॉट बैलेंसिंग mg, वो mg के उस कंपोनेंट को कर रहा है। थीटा 90 90 माइनस थीटा, फिर इट बिकम थीटा mg cos थीटा and mg sin theta। In this second situation, what is the normal reaction? Normal reaction किसको बैलेंस कर रहा है? mg cos theta। This is opposite to mg cos theta, not to mg। So in this second situation, normal reaction is so नॉर्मल रिएक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डायग्राम से देखना पड़ेगा कौन सा वाला फोर्स। ये जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वली हो। लाइक वी टुक एन एग्जांपल, अगर हम फ्लोर पे खड़े हैं और फ्लोर चलने लगे ऊपर, जैसे लिफ्ट पे, हाँ, द फ्लोर ऑफ अ लिफ्ट इज गोइंग अप, तो नॉर्मल रिएक्शन mg से ग्रेटर हो गया। तो हम जो वेट फील करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। हमारे वेट को कितना काउंटर बैलेंस हो रहा है, दैट इज, सो वेट इज एक्सपीरियंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन। जितना अगर नॉर्मल रिएक्शन mg से ज्यादा लगेगा तो हम ज्यादा अपना वेट भारी फील करेंगे। इफ इट इज लेस then it will be less, and when the contact is lost, the normal reaction will become 0।
Sorry for the disturbances. Okay, right. So N and mg is the force that always act. N surface के contact पे depend करता है. When there is contact, there will be normal reaction. Normal reaction becomes zero as soon as the contact is lost. So अगर किसी question में लिखा है the body loses the contact, मतलब उसका normal reaction हो गया zero. Normal reaction becomes zero when contact is lost. नॉर्मल रिएक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है. नॉर्मल रिएक्शन कौन डिसाइड करता है? किस फोर्स के वजह से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, कौन सा फोर्स उसको प्रेस कर रहा था जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन इज रिक्वायर्ड, राइट. नॉर्मल रिएक्शन ही हमें हमारा वेट फील कराता है. जब हम हवा में होते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सरफेस. दैट्स व्हाई देयर इज नो वेट एक्टिंग ऑन अस. नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है? किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू? सरफेस की हार्डनेस पे, रिजिडनेस ऑफ सरफेस, कितना वो हार्ड सरफेस है, कितना वो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर सकता है मैक्सिमम. बाकी कितना हमारे ऊपर लग रहा है वो तो डिपेंड करेगा द फोर्स दैट हैज बीन अप्लाइड. यस, दिस इज फोर्स दैट कैन प्रोवाइड. अब हम कुछ कुछ सिचुएशन में पहले नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन देख लेते हैं. एंड बिकॉज अभी हमें एफबीडीज बनाने होंगे, फ्री बॉडी डायग्राम. तो सपोज अगर ये कोई वॉल है, वॉल और फ्लोर के बीच में हमने एक रॉड रख दी. हाउ मेनी कॉन्टैक्ट विद द सरफेस? कितने कॉन्टैक्ट पॉइंट है? 2. सो देयर विल बी 2 नॉर्मल रिएक्शन. फ्लोर पे जो नॉर्मल रिएक्शन है इसने नीचे प्रेस किया, सो ये इधर N1. वॉल को प्रेस किया तो वॉल के परपेंडिकुलर, सो देयर आर दीस टू नॉर्मल रिएक्शन. इसमें और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? वेट सबका ही होता है. कहाँ लगेगा वेट? किस पॉइंट पे? सेंटर पे. सेंटर पे. फॉर एनी बॉडी विच इज कॉन्टिन्यूअस बॉडी, उसके लिए हमेशा सेंटर पर लगता है वेट. अब ये कोई लैडर है जो हम दीवार के सहारे खड़ी करके चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सो ग्राउंड पे फ्रिक्शन होना चाहिए, नहीं तो स्लिप करके गिरेंगे. देयर इज नो, N1 और mg तो अपोजिट हो गए, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. बट N2 को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है, तो इसी को बुलाना पकड़ता है, पकड़े रहो. अदरवाइज देयर शुड बी सफिशिएंट हाई फ्रिक्शन फ्रॉम द फ्लोर. सो वो जो फ्रिक्शन लगेगा वो इसको स्लिप होने से बचाने के लिए देयर शुड बी अ फ्रिक्शन फोर्स, जो कि हम अलग से पढ़ेंगे व्हाट इज फ्रिक्शन. अभी सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिकल फीलिंग के लिए, या तो किसी को बुलाते हैं पकड़ के रहो, हम ऊपर चढ़ने जा रहे हैं, नहीं तो फिर नीचे सरफेस बहुत हार्ड होना चाहिए. फ्रिक्शन. दिस इज एफबीडी. एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम. N1 ऊपर लग रहा है, mg नीचे, कहीं भी लग रहा हो अलग, बट इन दिस इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रॉड N1 ने mg को बैलेंस किया है और N2 इज बैलेंसिंग फ्रिक्शन Fr. तो कितना लगेगा वो उस मतलब सीढ़ी के एंगल पे भी डिपेंड करता है? हाँ बेटा. सर N2 की वैल्यू क्या होगी? वो जो रॉड है वो हाँ एब्सोल्युटली उस पर भी डिपेंड करता है, बट अभी हमने वो चैप्टर पढ़ा नहीं, इसलिए मैंने वो जानबूझ के स्किप कर दिया. ये दोनों इक्वल होंगे, बट इनकी वैल्यू कितनी होनी है इसका हमारे पास फॉर्मूला अभी नहीं है. दैट वी विल सी इन द रोटेशन चैप्टर. वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने एंगल पर आपने रॉड को रखा है. ठीक है. सो अभी हम सिर्फ नॉर्मली जो फोर्सेस पढ़ रहे हैं उनके बस डायग्राम में एफबीडी कैसे बनाते हैं थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर दी. दिस इज द सेम रॉड, सेम लैडर, बट वॉल थोड़ी छोटी है. वॉल इज स्मॉल हाइट, सो ये आगे निकल गई. दिस इज द सेकेंड केस. कुछ डिफरेंस है दोनों में इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सिचुएशन तो समझ आ रही है ना? ये वॉल बड़ी सी थी, इसमें छोटी सी वॉल है. यहाँ पे तो सेम कहानी, फ्लोर को उसने नीचे प्रेस किया, फ्लोर ने ऊपर. एट दिस पॉइंट एंगल पे नॉर्मल रिएक्शन होगा, बिकॉज अभी जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो इस रॉड का और इस पॉइंट का स्लैंट हो गया. सो द नॉर्मल रिएक्शन N2 डायरेक्शन विल चेंज.
कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ पे तो ये एक छोटा सा कॉन्टैक्ट पॉइंट था विच वाज टचिंग, नाउ दिस इज टचिंग उसके परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिलेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। अब बाकी हम आगे कैसे करेंगे वो रिजॉल्व करके n2 cos थीटा n2 sin थीटा। अगर ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 है, so this will be theta। थीटा 90, 90 माइनस थीटा 90, so this become थीटा। अब यहाँ पर अगर हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है, हम साथ साथ ना थोड़ा क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करना है वो भी कर रहे हैं, तो इट इज बेसिकली टाइम पास नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स की, एफवीडी बनाना और एक सेंटर पे mg, बाकी नीचे फ्रिक्शन होना ही चाहिए। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन देन दिस विल स्लिप, राइट। इसमें ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ईशान? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस रॉड ऊपर? और भी लग रहा है ना, पूरी देखो तो टोटल कितना हो गया? n2 cos थीटा लग रहा है ऊपर एक साइड पे, दूसरे साइड पे उधर अरे ऊपर n2 cos थीटा और n1। सो इन दिस केस जब आप y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखोगे इक्विलिब्रियम की, ये हम किसकी इक्वेशन लिख रहे हैं सब? इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख रहे हैं। सो इन दिस थर्ड एग्जांपल ऊपर की तरफ एक एंड पे फोर्स है n2 cos थीटा, दूसरे एंड पे n1, वो दोनों ऊपर लग रहे हैं और mg नीचे लग रहा है। so n1 plus n2 cos थीटा balances mg और n2 sin थीटा is balancing fr। x डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो, which means जो फोर्सेस अपोजिट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। n1 plus n2 cos थीटा is mg and n2 sin थीटा is equal to fr, right? Okay, so next is again हाँ बेटा। सर ऐसे क्वेश्चन Yes. में वो थीटा एंगल कहाँ पे लेना होता है रिजॉल्व करने के लिए? हर बार वो कैलकुलेट करने में टाइम लग जाता है। मतलब जैसे नीचे थीटा दिया हुआ है तो एन का थीटा कहाँ पे लेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो वो कैसे अरे निकालते वो हो? जादू से नहीं आया, वो ज्योमेट्री से आया यार। थीटा 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, नॉर्मल रिलेशन परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो ये 90 है। एक लाइन में ऑल थ्री एंगल, टोटल एंगल समेशन इज 180। सो अगर ये 90 माइनस थीटा और ये 90 है तो तीसरा थीटा ही बचेगा, समझे? हाँ सर। हाँ तो वो मतलब ओके। नेक्स्ट, सपोज देयर आर टू ब्लॉक्स A and B touching each other. How many normal reactions, how many contacts are there? How many normal reactions will be there? तो चार। चार कौन कौन सी? सर दो ग्राउंड के साथ और दो आपस में। अच्छा वो तो कर एक ही है, चलो ठीक है, दो ग्राउंड की n1 n2 और ये आपस में यानी B पे इधर और ऐसा, ये तो एक्शन रिएक्शन है तो एक ही मान लो, सही है। तुम्हारे कौन से थे तीन? 1 2 और तीसरा is this correct? These normal reactions, क्वेश्चन ये था इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितने लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं? हाँ नॉर्मल रिएक्शन, हाउ मेनी नॉर्मल रिएक्शन? 2। कौन कौन से? अरे है तो कैंसिल करे ना करे बात की बात है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये क्वेश्चन तो ये था, हाउ मेनी नॉर्मल रिएक्शन? चार है। फिर देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। व्हाट इज द कंडीशन फॉर नॉर्मल रिएक्शन? फिर से पढ़ो, कुछ लिखा है मैंने अभी। नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है? व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट एंड प्रेस ईच अदर। हाँ दबा रहे हैं एक दूसरे को, दे आर जस्ट प्लेस साइड बाय साइड।
ए और बी ने एक दूसरे को किसी को प्रेस नहीं किया, सिर्फ धरती को प्रेस किया अपने बोझ। सो N1 एंड N2 दीज आर द नॉर्मल रिएक्शन, देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन इन बिटवीन, जब तक कि इसमें कोई प्रेसिंग टेंडेंसी नहीं आती तब तक वो टच करे। जैसे फ्रिक्शन है, कितना भी रफ सरफेस हो, अगर हम खड़े हैं तो फ्रिक्शन थोड़ी लगेगा। एनी बॉडी इज स्टेशनरी नॉट ट्राइंग टू मूव, फ्रिक्शन इज जीरो। सेम हियर, टू surfaces in contact but not trying to move or not trying to press each other, there will not be up। तूने पूछा कुछ? कोई बात नहीं, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं इधर से भी इधर से। यस, अब इसी सिचुएशन में थोड़ी सी कहानी चेंज हो गई, हमने लगा दिया ए पे फोर्स। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ए हैज टेंडेंसी टू प्रेस बी, और अब ए बी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा टुवर्ड्स द राइट साइड। इक्वल एंड अपोजिट विल बी ऑन ए, प्लस जो ग्राउंड से था वो तो होगा ही होगा N1 एंड N2। M1 for the first block, M2 is for the second mass। अब इसकी अगर इक्वेशन लिखनी है, they both are moving always in contact, तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी, दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। नहीं सेम हुआ तो बीच में गैप आ जाएगा and the contact will be lost। So if we have to find the acceleration, if we have to find the normal reaction between them, एक तरीका क्या है, दोनों को मिला के एक सिंगल ब्लॉक एज्यूम कर लो, बिकॉज इट इज मूविंग टुगेदर ऑलवेज। साथ ही चल रहे हैं, तो ये एन एन बन गया एक तरह से इनका इंटरनल फोर्स। ऑन दिस सिस्टम दे मूव टुगेदर विद द सेम एक्सेलरेशन ए। अब अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे तो हम उसको एवरीडी बोलते हैं, बट अभी एज अ होल सिस्टम में ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा केवल फोर्स एफ इन एक्स डायरेक्शन। मोशन तो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूव करें तो हम केवल हॉरिजॉन्टल लिखेंगे। वो mg, इसके mg को n2 ने बैलेंस कर लिया, इसके mg को n1 ने बैलेंस कर लिया, वो खत्म। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स F लग रहा है उसकी वजह से दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। सो फॉर दिस सिस्टम ऑफ A and B, if you write equation, total force is equal to mass into acceleration for the system of both the blocks, so that is the easier way to do। हम पूरे सिस्टम को, क्योंकि साथ चल रहे हैं, दोनों को मिला के एक ही ब्लॉक बना देंगे। उसका मास हो गया m1 plus m2, एक्सेलरेशन हो गया a, F is equal to ma because mass is ये समझ आया ना क्या किया? फॉर दिस सिस्टम ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, इसकी अलग अलग इक्वेशन भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। अगर हम m1 के लिए इक्वेशन फॉर m1 फॉर a पे आगे फोर्स कितना लग रहा है F, उसके अपोजिट n, so net force is F minus n, that will be m1 into a। मोशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो बड़ा होना चाहिए, so F should be greater than n, resultant is F minus n। अब m2 के लिए लिखोगे इक्वेशन, अगर m2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, B पे only one normal reaction। इस F का m2 से कोई लेना देना नहीं है, B m2 जो मूव कर रहा है that is because of the push that A has given, और A ने इसके ऊपर फोर्स लगाया है केवल n, n will be equal to m2a। दोनों को ऐड करोगे तो भी सेम इक्वेशन मिल जाएगी। सेपरेट इक्वेशन फॉर m1 एंड फॉर m2। F उस पे थोड़ी लगा था, F किस पे लग रहा है, A पे। A का जब अलग से डायग्राम बनाओगे, दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। A में एक F है और A में एक N है, दैट्स इट। B में देयर इज नो F, जस्ट नॉर्मल रिएक्शन। हमने A पे फोर्स लगाया, A ने B को प्रेस किया और B ने नॉर्मल रिएक्शन लगाया, बिकॉज ऑफ दैट नॉर्मल रिएक्शन इज मूविंग। अब अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है तो A निकाल के यहाँ से A आ गया एक्सेलरेशन, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में, वी गेट द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। सो वर्ड नॉर्मल रिएक्शन यूज हो सकता है, या फिर लिखो कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स।
राइट ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इसलिए इसको मिस मत करना. फ्राइडे ऑल्सो वी विल डू दी थ्योरी ओनली, आई मीन दी कॉन्सेप्ट. जो डाउट्स होंगे वो लास्ट के 15-20 मिनट्स में करेंगे अगर आपके डाउट्स होंगे तो. अदरवाइज वी विल फर्स्ट कवर द सिलेबस. All Friday classes will be used for the normal syllabus now. You can ask your doubt 10-15 minutes जितना भी लगता है. After that we will do the concepts. Okay, thank you. Thank you, Thank sir. you, sir.